Hello all of you. In last lecture we have started with the forced vibration concept. In that we first started with the part 1, that is determination of steady state amplitude or a body subjected to simple harmonic motion. In that we have seen the different formula list, as well we have solved the two numericals which was the typical numericals. Today we will continue the same part, that is part 1, and we will see the another variety of numericals which have appeared in Bombay University. So first let me read the statement over here. A 65 kg electric motor is placed at the end of 1.3 meter steel. Okay, 1.3 meter steel having capital E, that is Young's modulus, 210 into 10 is to 9 Newton per meter square. Cantilever beam. Now this is the first time in your entire sessions such kind of question is appearing जिसमें आपको beam mention किया गया है. Okay, and that beam is having cross sectional moment of inertia as 1.3 into 10 raised to minus 6 meter raised to 4. Full stop. When the motor operates at 200 rpm, the phase difference between the operation of the motor and the respective beam is 5 डिग्री. तो आपको यहाँ पे फेज डिफरेंस की वैल्यू 5 डिग्री दी गई है. उसको कैसे यूज़ करना है आई विल लेट यू नो. Assume the viscous damping, estimate the damping ratio of the beam. Okay, now let's try to understand step by step. पहली बात, इसमें जो मास है 65 kg इलेक्ट्रिक मोटर, वो मास को प्लेस्ड किया गया है बीम के ऊपर. ओके, एंड दैट बीम इज 1.3 मीटर लॉन्ग विच इज हैविंग प्रॉपर्टी 210 into 10 raised to 9 Newton per meter square. Okay, and that also is having the cross sectional property 1.3 into 10 raised to minus 6 meter raised to 4, that is cross sectional moment of inertia. So while noting down in the given parameter, I am writing moment of inertia with the symbol I. So you can see here I is equal to 1.3 into 10 raised to minus 6 meter raised to 4. Then they are giving you the speed 200 rpm. So I have written capital N is equal to 200. They have given you the phase difference. You can see the phase difference between the operation of the motor and the respective beam is 5 degree. So the value of phi, see, okay, so phase difference I am writing with the symbol phi, that phi is equal to 5 degree. Okay, then as I told you, they have given you the mass value 65 kg. So mass is given to you. Now they are giving you another value, that is the length of shaft, which I have not mentioned here, but I will say let's represent this with the symbol L. So capital L will be used to represent the value of mass. Capital E is being represented to show the value of Young's modulus, which is 210 into 10 raised to 9 Newton per meter square. Now they are asking you to determine the damping ratio, that is zeta. Now let me be very much clear how you will come to know that this numerical is based on the forced vibration because of this value 5 degree. फेज डिफरेंस तभी आएगा जब वो फोर्स्ड वाइब्रेशन का न्यूमेरिकल होगा. सो यहाँ पे हमको 5 डिग्री दिया, उससे समझ में आता है ना. एक चीज़ याद रखो, आज तक कभी आपको अपेयर नहीं हुआ क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसीलिए हमने कभी डिस्कस भी नहीं किया. अगर बीम दिया रहता है बीम, सो बीम is having a property of beam is having a property of stiffness. Please remember, कोई भी बीम में प्रॉपर्टी होती है स्टिफनेस की. ओके, अब उसके अंदर भी कंडीशन क्या है कि बीम के एंड पर लोड रखा गया है. आप देख सकते हो जो भी बीम है कैंटिलीवर बीम, उसके एंड पर जो कि 1.3 मीटर के डिस्टेंस का है, लेंथ का है, तो उस 1.3 मीटर पे 65 kg का इलेक्ट्रिक मोटर रखा गया है.
नो इन दिस सिचुएशन अगर आपको बीम का स्टिफनेस चाहिए तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 3 EI/L क्यूब। आप बॉक्स में देखो मैंने हाईलाइट किया है। दिस इज बीन गिवन बाय 3 EI/L क्यूब। ओके, तो अब ये फॉर्मूला आपको कब यूज़ करना है, जब आपको कैंटिलीवर बीम दिया हो। ओके, उस कैंटिलीवर बीम में अगर लोड एट द एक्सट्रीम एंड रखा हो तब आपको स्टिफनेस ऑफ बीम इस फॉर्मूले से निकालनी है, विच इज़ 3 EI/L क्यूब। ओके, सो आपको ये याद रखना पड़ेगा। एक्चुअल में ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में डिफ्लेक्शन ऑफ बीम नाम के चैप्टर में सीखा होगा, और अगर नहीं सीखा है तो आई एम हेल्पलेस राइट नाउ। आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला कब यूज़ करना है मैं वापस बता देता हूँ। कैंटिलीवर बीम कैरिंग लोड एट द फ्री एंड के लिए यूज़ करना है, ठीक है। कैंटिलीवर बीम कैरिंग लोड एट द फ्री एंड जब आएगा तो वो टाइम पे आप बीम की स्टिफनेस के बीम करके जो मैंने बोला है उसकी स्टिफनेस आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो 3 EI/L क्यूब से। अब देख सकते हो आप अगले स्टेप में आपके पास 3 कांस्टेंट है। ई का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है 210 इंटू 10⁻⁹। आई का वैल्यू भी आपको दिया गया है 1.3 इंटू 10⁻⁻⁶। लेंथ का वैल्यू भी आपको दिया गया है, दैट इज़ 1.3 मीटर, और उसका होल क्यूब करना है, ठीक है। तो अब अगर आप ये वैल्यू को कैल्सी में सॉल्व करोगे आपको के बीम का आंसर मिल जाएगा, विच इज़ 372.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। वंस यू गेट द स्टिफनेस, क्योंकि ये जो असेंबली है इसके अंदर क्या है, बीम के ऊपर मास रखा है, देर इज़ नो डैम्पर, देर इज़ नो स्प्रिंग एलिमेंट एंड ऑल। सो इसके अंदर जो बीम है वही एज अ रिस्टोरिंग एलिमेंट एक्ट करता है, मतलब वही एज ए स्प्रिंग एक्ट करता है। तो ये असेंबली एकदम सिंपल है, जिसके अंदर एक बीम है और एक मास है। तो हमने बोला बीम का ही स्टिफनेस होगा, जो कि हमने निकाल लिया। ओके, सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, जिस एलिमेंट का स्टिफनेस है बीम का है, सो अंडर रूट ऑफ के बीम अपॉन द मास। एज यूजल हम जो पहले करते थे वही है, बट यहाँ पे के बीम इसलिए लिखा है क्योंकि बीम का ही स्टिफनेस अवेलेबल है। सो फिर हमने क्या किया, अंडर रूट ऑफ के बीम की वैल्यू डाल दी, जो कि आपको प्रीवियस स्टेप में मिली थी 372.78 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ओके, फिर हमने मास की वैल्यू डाल दी जो कि आपको 65 kg पहले से दी गई है। तो इस दौरान आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा 75.73 रेडियंस पर सेकेंड। ओके, देन आफ्टर दैट हमको फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मतलब ओमेगा फाइंड करना है। ओके, फोर्स फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमको, ओमेगा फाइंड करना है। तो ओमेगा के लिए 2πn/60 का फॉर्मूला होगा। दिस फॉर्मूला यू आर अवेयर। ओके, सो अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट ओमेगा की वैल्यू ना दी गई हो, जैसे कि हमने जो लास्ट 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उस टाइम पे ओमेगा की वैल्यू पहले से गिवन थी, बट इस क्वेश्चन में ओमेगा डायरेक्ट नहीं गिवन है, बट उन्होंने आपको आरपीएम स्पीड दिया है। तो आप उस आरपीएम स्पीड को यूज़ करके ओमेगा दैट इज़ फोर्स फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। तो इस चीज़ का अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले के न्यूमेरिकल्स में ओमेगा डायरेक्टली गिवन था तो मैंने डायरेक्ट उसको कंसिडर किया। अब यहाँ पे गिवन नहीं है, यहाँ पे स्पीड इन आरपीएम गिवन है। तो आप देख सकते हो मैंने ओमेगा निकालने के लिए 2πn/60 का फॉर्मूला यूज़ किया, and in that I am substituting the value of n as a 200 rpm which was given earlier. So you will get the force frequency, that is omega, by 20.94 radians per second. Okay, now in the previous lecture I gave you the different formulas list, and there was one formula, phase angle. Okay, so that formula I am noting down again over here. This is what phase angle formula, which is tan phi is equal to 2 zeta r upon 1 minus r square. Now if you can see, the value of phi is already given to you, value of zeta is to be find out, and r is nothing but as per the formula list it is omega by omega n. If you see your formula list you will get it that the value of r is a standard, that is omega by omega n.
So by keeping that in my mind, I am first finding out the R. Okay, in next step. So R is equal to what? Omega by omega n, omega upon omega n. So you can see here, omega you got 20.94 radians per second, which I have substituted in the numerator, and omega n is 75.73 radians per second, which I have substituted in the denominator over here. So you can get the value of what? R. Now, as I told you, this is the standard formula of phase angle or phase difference, where the value of phi is known to you. That phi is given as a 5 degree. Okay, 2 is the constant value. Zeta is to be obtained. So you can see zeta is unknown. R, you got it over here in the previous step. So you have to substitute over here. Okay, upon 1 minus r square. So you have to substitute the value of r. Now if you solve this entire, you will get the value of zeta. Now this numerical have appeared for 10 marks. You can see that nothing was complicated. Just the thing is that I taught you the new concept, that if the beam is given, then you have to find out the stiffness of beam, and how to get that stiffness by this formula. Now this formula is only applicable for cantilever beam carrying a load at free end, but there is another conditions also, like simply supported beam carrying a load. So that time formula, this stiffness formula will get changed. Okay, so as the situation come, I will let you know those cases also. Okay, so right now just you have to remember, if there is a cantilever beam carrying load at the free end, so stiffness can be calculated by using this formula, that's it. And then if the omega value is directly not given, then how to obtain that omega, that I taught you right now. Okay, then how to make use of this phase angle formula, that's it. Okay, so with this I can say this numerical is finished. Now let's go to the next numerical first. Now this is very complicated and time consuming numerical, but this is the numerical which I found almost in last 8 9 years. I found this numerical at least for 3 to 4 times. So you can conclude that after every 2 years this numerical gets repeated, or this such kind of numericals come in exam paper. Okay, so let me read the statement first. A machine of 20 kg mass is mounted on a spring and a damper with the spring stiffness 8 kilonewton per meter and damping coefficient 130 newton second per meter. So you can see the value of mass is given to you, which is 20 kg. Value of stiffness is given to you 8 kilonewton per meter, and the value of damping coefficient is given to you 130 newton second per meter. If the system is initially at rest and the velocity is 10 centimeter per second, see per second is not written, it is second inverse, ultimately both are same. So वो क्या कहना चाहता है कि इनिशियल फेज पे सिस्टम रेस्ट पे है और वेलोसिटी जो है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है to the mass, imparted to the mass. Determine the displacement and velocity of the mass as a time function, and the displacement at t is equal to 1 second. Now this is very tricky numerical, as I told you earlier. Why? Because ये numerical में free vibration भी है, forced vibration भी है. अब आपको डाउट आएगा ऐसा क्यों? तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एग्जामिनर पेपर को कंबाइन कर सकता है, लाइक फ्री वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन दोनों के कॉन्सेप्ट को एक ही न्यूमेरिकल में मर्ज करके वो दे सकता है. तो अभी तक जो यहाँ से लेके यहाँ तक है टिल पॉइंट नंबर 2, ये सिर्फ फ्री वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट है. अब फोर्स्ड वाइब्रेशन के कॉन्सेप्ट के लिए ये लास्ट की 3 लाइन है, तो वो देख सकते हो वहाँ पे क्या लिखा है. नाउ इफ एन एक्साइटेशन फोर्स ऑफ 24 sin 15 t, so this relation is given 24 sin 15 t, and this entire is Newton, means this is the value of force, okay, is applied to the mass. Find the steady state response of the system. Now you can see this is your part 1 ना, मैंने आपको बताया था
पार्ट 1 में कीवर्ड्स है। अगर कीवर्ड्स है तो कौन सा कीवर्ड्स रहेगा? डिटरमाइन द स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड और रिस्पॉन्स। तो देख सकते हो ये कीवर्ड यहाँ पे रिपीट हुआ। इट मीन्स दैट आपको इस न्यूमेरिकल में पार्ट 1 का कॉन्सेप्ट भी यूज़ करना है, बट ये लास्ट पैराग्राफ के लिए। और जो अभी तक यहाँ तक है वो है हमारा फ्री वाइब्रेशन के लिए। ठीक है, तो आपको बहुत ही केयरफुली इसको समझना है। यह न्यूमेरिकल जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं। इसमें फ्री वाइब्रेशन के लिए पहला पैराग्राफ है और फोर्स्ड वाइब्रेशन के लिए दूसरा पैराग्राफ है। तो इसको कैसे डील करना है अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। You can see here they have given you the value of mass 20 kg in the first statement only. Okay. Now see this carefully. जो मैंने बॉक्स में हाईलाइट किया है इसको केयरफुली देखो जरा। 24 sin 15t। इफ़ यू रिमेंबर मैंने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने आपको कहा था फोर्स्ड वाइब्रेशन का जो वैल्यू होता है वो होता है एफ नॉट साइन ओमेगा टी। जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं क्या रहता है वो एफ नॉट साइन ओमेगा टी। लेट मी गो टू दैट थिंग अगेन सो दैट यू कैन रिकॉल। यू कैन सी हियर this value I am talking of this. Okay, you can see this is what left hand side, but right hand side indicates the forced vibration and this is what f of sin omega t. Okay, so what I mean to say, अगर आप ये इक्वेशन f of sin omega t ये टर्म को रिलेट करते हो 24 sin 15t से तो आपको पता चलेगा F का वैल्यू जो है वो 24 न्यूटन है। ओके, और जो ओमेगा का वैल्यू है वो 15 रेडियंस पर सेकेंड है। ओके, दिस इज व्हाट द कोरिलेशन। मतलब मैंने ये गिवन को स्टैंडर्ड से कंपेयर किया है और वहाँ पे मुझे पता चला है कि एफ नॉट साइन ओमेगा टी कैन बी रिलेटेड टू दिस इक्वेशन। So after relating, f naught will become 24 and omega will become 15 radians per second. And why I am saying f naught in Newton? Just because of this, outside the bracket उन्होंने न्यूटन से मेंशन किया है। So I believe आपको ये वैल्यू का इम्पोर्टेंस समझ में आया रहेगा। इसका मतलब आपको f नॉट और ओमेगा डायरेक्टली प्रोवाइड किया गया है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको इस क्वेश्चन में स्प्रिंग का स्टिफनेस दिया है 8 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, सो 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर आ गया। डैम्पिंग कोएफिशिएंट जो दिया है 130 न्यूटन सेकेंड पर मीटर, मतलब सी का वैल्यू 130 न्यूटन सेकेंड पर मीटर आ गया। क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी दी गई है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो एक्स डॉट दिया है मतलब, तो मैंने उसको कन्वर्ट किया इन मीटर पर सेकेंड में, दैट इज 10 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड आ गया। ओके, ना ये तो हो गया ऑल अबाउट गिवन वैल्यू। अब आपको करना क्या है वो समझो। आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है किसका? डिस्प्लेसमेंट का और वेलोसिटी का। आप ये बॉक्स में मैं देखो हाईलाइट कर रहा हूँ। व्हेन आई से डिस्प्लेसमेंट इट मीन्स एक्स, व्हेन आई से वेलोसिटी इट मीन्स एक्स डॉट। ओके, सो आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। ओके, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। और एक बार आपको इक्वेशन मिल गया फिर आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, उसके बाद लास्ट पार्ट में आपको स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, मतलब फोर्स्ड एम्पलीट्यूड फाइंड करना है जिसको हम एक्स ही बोलते हैं। ओके, सो ये 3 वैल्यूज़ आपको इस न्यूमेरिकल में फाइंड करनी है। पहले तो आपको मैं एक बात याद दिला दूँ, जब मैंने आपको मॉड्यूल 4 का कॉन्सेप्ट सिखाया था तो मैंने कहा था कि जीटा का 3 रेंज होता है। पहला जीटा लेस देन 1 विच इज़ कॉल्ड एज व्हाट? अंडर डैम सिस्टम। दूसरा जीटा इज इक्वल टू 1 विच इज़ कॉल्ड एज व्हाट? critical damped system, and zeta is greater than 1 which is called as what? Over damped system. Okay,
अब अगर मुझे कोई भी डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन फाइंड करना है तो मुझे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जीटा की वैल्यू क्या है, जीटा का रेंज क्या है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रख के सबसे पहले मैं ये वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो वी नो दैट जीटा इज इक्वल टू सी अपॉन सी सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आपको मॉड्यूल 4 में भी मैंने सिखाया था। नाउ सी का वैल्यू क्या है, 130 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। सी सी का वैल्यू क्या है, अब ये लीनियर सिस्टम अगर हम एज्यूम करेंगे, सो दिस इज व्हाट 2m ओमेगा n। सो आप देख सकते हो 2m मतलब मास 20 kg, ओमेगा n मतलब अंडर रूट k बाय m। तो k की वैल्यू आपको दी गई है 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, और m की वैल्यू भी आपको दी गई है 20 kg। तो इस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया है। अदरवाइज आपको मैं बता दूँ सी सी का फॉर्मूला जो मैंने यूज़ किया है वो है 2m ओमेगा n। ओके, अब मैंने सारी वैल्यू जब डाल दी तो मुझे जीटा की वैल्यू मिलती है 0.1625, एंड आई कैन सी दैट दिस वैल्यू इज लेस देन 1। सो आई कैन कंक्लूड सिस्टम इज अंडर डैम सिस्टम। ओके, सो हमने मॉड्यूल 4 में भी एक न्यूमेरिकल यूज किया था, सॉल्व किया था, जिसमें सिस्टम ओवर डैम्प्ड आया था। और मैंने आपको वहाँ पे सिखाया था अगर सिस्टम ओवर डैम्प होता है तो इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू c1 ऑफ e⁻⁻⁻t प्लस c2 ऑफ e⁻⁻⁻t। आई होप आपको वो रिकॉल होगा। आई थिंक आई टॉट यू दिस थिंग इन लेक्चर नंबर 8। ओके, तो उसके अंदर मैंने ये चीज़ें आपको सिखाई थी, बट वो ओवर डैम्प के लिए था। अब इस न्यूमेरिकल में सिस्टम अंडर डैम्प आ गया। ओके, तो लेट मी टेल यू, अंडर डैम्प सिस्टम के लिए डिस्प्लेसमेंट का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। जैसे वहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन था ना, वैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो आप देख सकते हो आपके दो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर लिए हैं। कॉन्सेप्ट 1, जब सिस्टम ओवर डैम्प हो तो इक्वेशन क्या होता है। कॉन्सेप्ट 2, जब सिस्टम अंडर डैम्प्ड हो मतलब जीटा लेस देन 1 हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज इक्वेशन ऑफ एक्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम में अंडर डैम्प के कॉन्सेप्ट को लाना है, तो इसके लिए मैंने ये इक्वेशन यूज़ किया है। ओके, अब इसके अंदर जो कैपिटल एक्स है उसका मतलब होता है पीक एम्पलीट्यूड। क्या होता है वो, पीक एम्पलीट्यूड। सो रिमेंबर दिस, कैपिटल एक्स स्टैंड्स फॉर पीक एम्पलीट्यूड। इनसाइड द ब्रैकेट लिखा है e⁻⁻⁻ζ ओमेगा nt इंटू साइन ऑफ ओमेगा डी। ये ओमेगा डी होता है, ठीक है, प्लीज़ मेक श्योर यहाँ पे ओमेगा डी होता है। सो ओमेगा डी टी प्लस फाइव ब्रैकेट क्लोज एंड इंटायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओमेगा टी लिखा है वो ओमेगा टी नहीं है, ओमेगा डी टी है। ठीक है, डैम्प फ्रीक्वेंसी है ओमेगा डी। ओके, देखेंगे आगे हम। अब हमको इस क्वेश्चन में यहाँ तक आई होप आपको ये समझा रहेगा। ये क्यों किया, सो दैट अब मुझे पता चल गया सिस्टम अंडर डैम्प है। तो अंडर डैम्प सिस्टम के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ये मैंने एज इट इज़ नोट डाउन किया, जिसमें एक्स का मतलब होता है पीक एम्पलीट्यूड और ये जो ओमेगा होता है वो डैम्प फ्रीक्वेंसी होता है, इसीलिए उसको ओमेगा डी लिखो। ओके, अब बाउंड्री कंडीशन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन में आपको मैं वापस आपको क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ। बाउंड्री कंडीशन में बोला है सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट and velocity of 10 centimeter per second is imparted. Now when system is initially at rest, ये सी कंडीशन हमने मॉड्यूल 4 में भी सॉल्व की थी। तो उसका मीनिंग क्या होता है, when time is 0 x is 0। करेक्ट, सिस्टम इनिशियली रेस्ट है और उसी रेस्ट पोजीशन पे देख सकते हो, उसी रेस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। ओके, तो यही होता है ना बाय एनर्जी लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। हमने यही सीखा है ना, अगर किसी टाइम पीरियड पे एक काइंड ऑफ एनर्जी ज़ीरो है मतलब उसी टाइम पे दूसरी एनर्जी मैक्सिमम है। तो अगर मैं बोलता हूँ सिस्टम इज रेस्ट इनिशियली, इसका मतलब ज़ीरो टाइम पे उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, और अगर उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, सो व्हाट विल हैपन, योर काइनेटिक एनर्जी वैल्यू विल बी मैक्सिमम। तो वही बाउंड्री कंडीशन में भी तो रिफ्लेक्ट किया है मैंने। व्हेन टाइम इज ज़ीरो
your displacement value is 0. Okay, but at the same time when time is 0, velocity is 10 into 10 raised to minus 2 meter per second. So this is given in question, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट नाउ. अब अगर मैं फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन यूज करता हूँ, दैट इज t0 x is 0, और ये बाउंड्री कंडीशन मुझे कहाँ पे डालनी है, इक्वेशन 1 में डालनी है. ओके, सो स्मॉल x 0, ये कैपिटल x नहीं है, कैपिटल x मतलब पीक एम्पलीट्यूड होता है, ये याद रखना. तो अगर मैं स्मॉल x की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 डाल दूँ और t की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 डाल दूँ, तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा, जो कि ये रहा. राइट हैंड साइड में जब वो जाएगा, सो ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी है, टी मैंने 0 डालने वाला हूँ. ठीक है, तो ई रेस टू 0 हो जाएगा ये पूरा. ओके, और ई रेस टू 0 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. फिर ये साइन ऑफ ब्रैकेट में ओमेगा डी टी प्लस फाइव, अभी टी का वैल्यू मैं वापस क्या डालने वाला हूँ, 0 इसमें भी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 प्लस फाइव, तो बचेगा क्या, साइन 5. तो ये देख सकते हो ये टर्म आ गया. ओके, तो ये टर्म किधर से आया समझा, आपको फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन 1 में, तो आपको ये टर्म आ जाएगा. ओके, अब इस टर्म को ध्यान से देखो, यहाँ पे दो वेरिएबल हो सकते हैं, एक है पीक एम्पलीट्यूड और एक है फेज डिफरेंस. ओके, नाउ ये दोनों इज इक्वल टू 0 लिखा है हमने. इसका मतलब क्या होगा, आइदर x इज इक्वल टू 0 और साइन फाई इज इक्वल टू 0. आई होप आपको ये सिंपल मैथमेटिक्स समझ में आता है. आइदर x इज इक्वल टू 0 और साइन फाई इज इक्वल टू 0. नाउ लेट मी बी वेरी मच स्पेसिफिक. x कैन नॉट बी 0, दिस कैपिटल X कैन नॉट बी 0. वाई, अरे भैया जब सिस्टम वाइब्रेट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हो सकता है, पीक एम्पलीट्यूड 0 कैसे हो सकता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, सो मैंने वही बताने की कोशिश की है. एज पर दिस रिलेशन it means that either x is equal to 0 or sin phi is equal to 0, but system is vibrating, then x cannot be 0. तो मैंने यहाँ पे लिखा है, it means if it cannot be 0, then there is a possibility sin phi can be 0. Okay, and if sin phi can be 0, then phi is equal to 0. Okay, because phi of sin inverse 0 करेगा तो phi का वैल्यू 0 आ जाएगा. Okay, तो इस दौरान आप देख सकते हो इसके अंदर दो कांस्टेंट है, एक है कैपिटल X और एक है फाई. तो हमको फाई का वैल्यू 0 मिल गया. ओके, अब हमको दूसरी बाउंड्री कंडीशन यूज करनी है, सेकंड. अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन को आप ध्यान से पहले तो देखो, वो x डॉट है, मतलब वो वेलोसिटी के फॉर्म में है, और हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में है. तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन 1 डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा वेलोसिटी में, और आपको पता रहेगा डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में कन्वर्ट कैसे करते हैं. आपने बेसिक मैथ सीखा है ना, डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव लेते हैं. तो अगर मैं इस x को डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा. तो आप देखो मैंने अगले स्टेप पे वही किया है. तो अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करना है तो एक चीज़ याद रखो, ब्रैकेट के अंदर आपको UV रूल लगाना पड़ेगा. ओके, तो इस पूरे टर्म को मैंने u बोल दिया है. ठीक है, ये पूरे टर्म को u बोला है. डोंट थिंक कि ये डिवाइड बाय u है, ये पूरे टर्म को मैंने u बोला है. ओके, और ये पूरे टर्म को, ये साइन वाले टर्म को मैंने v बोला है. ओके, तो जब UV रूल लगेगा, ये देखो x तो कांस्टेंट है, तो पहले तुम्हारा ये जो वैल्यू है साइन ऑफ, ये v एज इट इज रखा है मैंने, तो आप देख सकते हो साइन ऑफ ओमेगा डी टी, फाई का वैल्यू 0 है, तो नो नीड टू राइट डाउन. इसका डिफ्रेंशिएशन, ई रेस टू का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस जीटा ओमेगा एन, एन ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी एज इट इज. फिर u को एज इट इज रखेंगे, और v का डिफ्रेंशिएशन, तो v क्या है, साइन, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस. ठीक है, और टाइम के साथ कांस्टेंट भी है ओमेगा डी, तो वो भी आ गया. तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ आपने पढ़ी है, इस पर मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है. मुझे सेकेंड बाउंड्री कंडीशन यूज़ करनी है. सेकेंड बाउंड्री कंडीशन के लिए कंडीशन वेलोसिटी के फॉर्म में दिया गया है, और वेलोसिटी का फॉर्म मतलब यहाँ पे x डॉट होना चाहिए, बट ये डिस्प्लेसमेंट है. तो इस डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है. कैसे करना है,
उसका टाइम डेरिवेटिव लेना है, और टाइम डेरिवेटिव लेते वक्त ये पूरे टर्म को u बोलना है और ये पूरे टर्म को v बोलना है, और u v रूल लगा के आपको फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो आपको इक्वेशन 2 मिल जाएगा, विच इज़ नथिंग बट द डिस्प्ले वेलोसिटी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आप ये वाली बाउंड्री कंडीशन सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, मतलब जो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है वो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप देखो टाइम 0 है और वेलोसिटी 10 इंटू 10⁻⁻² है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 10 इंटू 10⁻⁻² डाला, टाइम 0 डालना है। नाउ बी वेरी मच क्लियर, समझने की कोशिश करो। अगर आपने टाइम का वैल्यू 0 डाला यहाँ पे, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू। ओके, सो अगर टाइम 0 डाला तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0, और 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, मतलब ये प्लस के पहले वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा ना। एग्री? करेक्ट। ओके, सो यहाँ पे देखो टाइम 0 डालोगे तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 इंटू एनीथिंग विल बी इंटायरली 0। ओके, तो बचेगा आपके पास ये वाला पार्ट। अभी जब ये पार्ट में टाइम का वैल्यू 0 डालोगे तो ये कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू मतलब कितना? 1 होता है। ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी, यहाँ पे भी टी डालोगे तो ई रेस टू 0 हो जाएगा। ई रेस टू 0 भी कितना होता है? 1 होता है। तो बचेगा क्या? ये कैपिटल एक्स एज इट इज़ है। ये वाला पार्ट तो पूरा 0 हो गया, बिकॉज आपने टी का वैल्यू 0 डाला तो ये पूरा 0 हो गया। यहाँ पे टी का वैल्यू 0 डाला तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ ओमेगा टी। इन शॉर्ट दिस कैन बी इक्वल टू कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा टी। करेक्ट, ये बच गया। अब कैपिटल एक्स मतलब ये ओमेगा डी को मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके आ गया ना। ओमेगा डी का फॉर्मूला होता है, हमने मॉड्यूल 4 में सीखा है। क्या होता है? ओमेगा एन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओके, दैट हैज बीन गिवन बाय व्हाट? फॉर्मूला ओमेगा एन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी। अब इसके अंदर लगने वाले सारे के सारे टर्म्स आपको पता है, जैसे ओमेगा एन 20 निकाला हमने, फिर जीटा का वैल्यू जो है वो हमने स्टार्ट में ही फाइंड किया, तो इससे मुझे x मिल गया। और ये जो x है ना, ये है पीक एम्पलीट्यूड। ओके, तो जो भी x और फाई आपको मिला था यहाँ पे, ये दोनों वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप देखो मैंने वही किया है। स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स जो मिला है आपको वो उठा के यहाँ पे डाल दिया, फिर ब्रैकेट ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी, तो माइनस जीटा और ओमेगा एन मल्टीप्लाई किया तो वो 3.25 आ गया। ठीक है, साइन ओमेगा डी टी, तो ओमेगा डी मतलब क्या? ये वैल्यू 20 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.1625 द होल स्क्वायर। तो वो वैल्यू का जो आंसर आएगा 19.73 आएगा, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। और ये टी एज इट इज़ रहा, फाई का वैल्यू 0 था। तो आप देख सकते हो आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिल गया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें देखो सिर्फ टाइम ही वेरिएबल है। ओके, फिर आपको वेलोसिटी इक्वेशन भी चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये रहा आपका वेलोसिटी का इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। इसके अंदर आप x की वैल्यू डाल दो, ओमेगा डी की वैल्यू डाल दो, जीटा की वैल्यू डाल दो, ओमेगा एन की वैल्यू डाल दो, और आज आप उसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको वेलोसिटी भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ तक मैंने पार्ट 1 न्यूमेरिकल का सॉल्व किया है अभी तक। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी निकाला है। ओके, अब मैं जा रहा हूँ सेकेंड पार्ट पे कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो जब टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड है। करना कुछ नहीं है, ये रहा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, और उसके अंदर मैं टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड डाल दूंगा, आप देख सकते हो। तो इक्वेशन 3 में जाना है आपको, और वहाँ पे टाइम का वैल्यू आपको 1 सेकेंड सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ओके, सो विद दिस आई कैन से हमने डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर लिया व्हेन टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके, नाउ आफ्टर दैट हमको फोर्स्ड वाइब्रेशन के कॉन्सेप्ट में जाना है। नाउ इफ यू रिकॉल द फोर्स्ड वाइब्रेशन कॉन्सेप्ट, this is the formula which we were dealing in the part 1, correct? X upon xxt is equal to 1 upon under root of 1 minus r square the whole square plus 2 zeta r the whole square. Okay, now r is equal to what? Omega by omega n. ठीक है, पता है ना, सीखा है हमने। ओमेगा आपको क्वेश्चन में दिया है, मैंने बताया, गिवन के टाइम पे बता दिया। ओमेगा एन आपने फाइंड किया था तो आपको आर मिल गया।
ना एक्स एक्स टी, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला एफ नॉट बाई के होता है। क्वेश्चन के गिवन में एफ नॉट की वैल्यू दी गई है और के की वैल्यू भी दी गई है, तो आपको एक्स एक्स टी मिल गया। और आपको जीटा तो ऑलरेडी पता है, आपने फाइंड किया है। तो देखो इस फॉर्मूले में एक्स अपॉन एक्स एक्स टी में मैंने सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है, यू कैन सी हियर, ओके। एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, एक्स। अब ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो आप देख सकते हो ये जो पार्ट 3 था ये पूरा सॉल्यूशन था फोर्स्ड वाइब्रेशन का, ओके। और जो यहाँ तक था पार्ट, ये पूरा यहाँ तक जो चल रहा था ये पूरा सॉल्यूशन था फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन, ओके। तो मैं एक बार इस न्यूमेरिकल का रिकैप ले लेता हूँ। हमने क्या किया, पहले जीटा की वैल्यू कितनी है वो पता किया, तो जीटा लेस देन 1 आया, अंडर डैम्प सिस्टम प्रूव किया। अंडर डैम्प सिस्टम के लिए डिस्प्लेसमेंट का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, याद रखना। मेक श्योर ये डिवाइड बाय यू नहीं है, हाँ, ये डिफरेंशिएशन के टाइम पे इसको यू बोलना है और इसको वी बोलना है, वो है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन गिवन थी उसको समझा। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन को मैंने उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे ये वैल्यू मिल गई। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन के लिए मुझे वेलोसिटी टर्म चाहिए था, तो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया तो मुझे इक्वेशन 2 मिल गया। और उस इक्वेशन 2 में मैंने सेकेंड बाउंड्री कंडीशन डाली, वो इन टर्म्स ऑफ एक्स आया, और उसमें जो ओमेगा डी थी उसकी वैल्यू ओमेगा एन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर एज पर फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट की तो मुझे एक्स की वैल्यू भी मिल गई। अब ये वैल्यूज मिलने के बाद हम इक्वेशन 1 में कैपिटल एक्स और फाई की वैल्यू को सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। उसके बाद हम इक्वेशन 2 में एक्स और फाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम वेलोसिटी इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेंगे। उसके बाद टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड डालेंगे और डिस्प्लेसमेंट का फाइनल वैल्यू निकालेंगे। मतलब इक्वेशन 3 में टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड डालनी है तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद फोर्स्ड वाइब्रेशन कॉन्सेप्ट आता है जहाँ पे हमको स्टडी स्टेट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले में लगने वाला आर वो मैंने यहाँ पे फाइंड किया ओमेगा बाय ओमेगा एन से। उस फॉर्मूले में लगने वाला एक्स एक्स टी जो मैंने फॉर्मूले से फाइंड किया एफ नॉट बाय के, एंड अकॉर्डिंगली हमको ये भी वैल्यूज मिल गई। और सारी वैल्यूज यहाँ पे डाल के मुझे सिर्फ एक्स अननोन है जिससे मुझे स्टडी स्टेट एम्पलीट्यूड का वैल्यू मिल गया, ओके। सो विद दिस आई कैन से आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन का पार्ट 1 कवर हो गया है, ओके। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल कवर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर फोर्स्ड वाइब्रेशन, ओके। आप देख सकते हो पूरा का पूरा खेल फॉर्मूला बेस्ड है, न्यूमेरिकल्स पॉसिबल है, फ्री वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन कंबाइंड होके भी आ सकता है, ओके। सो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ओके। तो आप अभी आफ्टर दिस माय सेशन मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। तो आपको जो भी टाइम मिल रहा है उस टाइम में आप इसको वापस अपने नोटबुक में लिखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। और इन केस आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, और यू कैन सेंड योर डाउट पर्सनली ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, ओके। विद दैट आई एम सेइंग थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू टेक केयर।